Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history chapter first brick, beads and bones. My dear student, if you have remembered that the different classes which we had conducted for this chapter, and we studied the different topic of this chapter. I mean to say that the origin and expansion, the date of Indus Valley civilization, datings, the citadels, I mean to town plannings, religion. These are all points, and society also we had studied. We also discussed about that the Indus administration. In my last class, we will try to understand the topic Indus Valley civilization and their economic life. Civilization, Indus Valley civilization, their economy. क्या थी इकोनॉमी? इफ यू हैव रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास, उसके पहले की क्लास अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने इकोनॉमी को, इस इकोनॉमी को मैंने कल तीन पार्ट में मैंने तोड़ा था, लेकिन आज मैं इनको सिर्फ दो पार्ट में तोड़ूंगा. सपोज फर्स्ट द एग्रीकल्चर, सेकेंड ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. मैंने कल तीन पार्ट में तोड़ा था और यहां पे पास्टोरलिज्म को भी एक पार्ट बना दिया था. अगर आपको मेरी कल की क्लास याद होगी तो मैंने कल वहां पे तीन पार्ट किया. What I told you that I discussed about that the Indus economy on the basis of three main elements: agriculture, pastoralism and trade. Today we will study in two parts: agriculture and pastoralism, and first and second trade. My dear student, today I want to discuss with you that कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इंडस की जो इकोनॉमी थी, इंडस की जो अर्थव्यवस्था थी, इंडस की जो इकोनॉमी थी, इंडस की इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? वो ये कि इंडस अर्बन कल्चर पे आधारित थी. अर्बन कल्चर जैसे मैंने कहा तो मैंने कहा ये नगरीकरण था, नगरों का विकास हो चुका था और ये नगर तेजी से विकास के चरम पे थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो डिटेल्स हमें मिले, व्हाट वी हैव on the basis of that, the different archaeologists, they felt that Indus Valley civilization, that was the pure organized culture. Their economy that was based on trade and transportation. But they never denied that the agriculture and pastoralism industry also in developed form. If you have remembered my last class where I told you that fisheries industry also developed, because we have the various different evidences. On the basis of that we can say that the fish, it was also the famous things for them. Why I am saying, my dear student, आपको याद होगा कि मैंने जब आपको स्क्रिप्ट के बारे में बात की थी
enigmatic script of Indus Valley civilization. Unfortunately, we are unable to read this till today. But without any hesitation, we can say that the Indus Valley civilization people, they used the huge amount of what? That things. इन चीज़ों को यूज करते थे. ये चीज़ें मछली के सर्वाधिक अंकन उनकी स्क्रिप्ट में मिलते हैं. फिश आकार की संरचना, मछली का अंकन, इट मीन्स एक ऐसे ये शेप सबसे अधिक मिला इंडस में, और एक यू वाले से ये इंडस स्क्रिप्ट में सबसे अधिक मिल रहे थे. इसकी मीनिंग्स क्या हुआ? व्हाट दैट मीनिंग्स? इट मीन्स कि वहां पे ये इंडस्ट्री भी डेवलप रही होगी. एज यू नो दैट कि सभी साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे ही विकसित हुए थे. तो ऐसा कैसे हो सकता था कि ये लोग बिना मछली के, बिना फिश के ये अपना काम करते होंगे? तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको भी समझना चाहिए वो ये कि मछली पालन भी इनका महत्वपूर्ण उद्योग रहा होगा. अब आइए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड द रिमेन्स विच is collected by the archaeologists and historians from the different sites of Indus Valley civilization. I will give you all the evidences. I will tell you the name, the place where they find, जहां से उन्होंने पाया. They found particular desert places. क्या क्या चीजें, कौन कौन सी बातें, सब पे बात करेंगे. आज इस चैप्टर को विस्तार से देखेंगे. Okay, so I hope you are getting what I am telling you, my dear student. It is the very important things, and today this class is going to be very interesting. So that's why please watch this video and what इसका फायदा उठाइए. Okay, let's start your topic agriculture. तो आइए पहले एक पॉइंट पे एग्रीकल्चर को बेस करते हैं कि एग्रीकल्चर की क्या क्या स्पेशलिटी थी. एग्रीकल्चर किस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेती करते थे? वी हैव एविडेंस. आई एम अगेन से एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए पॉइंट्स में लिखते जाइए. पहला पॉइंट आपको समझने में आसानी होगी. पहला पॉइंट क्या हो सकते हैं? कहता है कि all the Indus site sites situated near river bank. River bank. It means what it means? It means क्लियर है कि एक चीज आपको मिल जाएगी. What? कि जैसे ही रिवर बैंक मैंने कहा, फर्टाइल लैंड और इरिगेशन फैसिलिटीज, उपजाऊ फर्टाइल लैंड एंड इरिगेशन फैसिलिटी. इरिगेशन फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी. इट मीन्स दो चीजें आपको मिल गई. रिवर बैंक के किनारे रहने के काम, फर्टाइल लैंड, और सेकेंड थिंग इनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, चूंकि वेटलैंड्स भी मिलेंगे आपको, नम भूमि में गहरी जुताई के लिए कठोर फाल की जरूरत नहीं रहती होगी. ऐसे हल जो लोहे के बने हों, इंडस में चूंकि लोहा नहीं प्राप्त हुआ. व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट कि
in Indus Valley civilization, iron was not used in any place. किसी भी प्लेस में ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले जिससे इस बात की पुष्टि हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करते थे। तो लोहे के बने फाल का प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं करते थे। डीडी कौशाम्बी जैसे इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल का ही प्रयोग नहीं करते थे। हल इट मीन्स प्लाव, बट it is difficult to accept this view. Why? Because we have evidence. If you have remembered that what I told you in the previous class and what I discussed with you, that the place is कालीबंगा। कालीबंगा में क्या मिला? कालीबंगा में मैंने बात की थी कि वहां पे जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए, उसमें आरे बने हुए हैं। तो हल का प्रयोग तो हुआ था, ये तो सही। इसके अलावा हमारे पास कुछ और एविडेंसेस भी हैं। जैसे आपका बुक कहता है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी अपनी, तो कहता है कि 2 स्थान की नाम लेता है। कहता है कि बानावली से और बहावलपुर और बानावली, इसके अलावा चोलिस्तान, 3 जगह ऐसे थे जहां से टेराकोटा का हल मिला। और ये टेराकोटा का हल ये प्रूव करता है कि इंडस के लोग हल से परिचित थे, वो खेतों में हल का प्रयोग करते रहे होंगे। दैट्स वाई दे शेप दैट टाइप ऑफ व्हाट निरोज, मिट्टी की आकृति का हल उन्होंने बनाया था। तो एक चीज तो क्लियर है कि वो हल का प्रयोग करते रहे। डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि वो कुदाल का प्रयोग करते थे, हो का प्रयोग करते थे। जैसे अगर ऐसे समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें कोई दोष राय नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेन जो ऑक्यूपेशन उसमें रहा होगा वो खेती उसका महत्वपूर्ण पार्ट रही होगी, फार्मिंग महत्वपूर्ण अंग रहा होगा। उर्वरता की मुख्य केंद्र, मुख्य कारण सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां थी, जो बाढ़ से खूब सारी जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी, जिससे जमीन उर्वर हो जाती थी। और जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे वे कॉपर के बने हुए होंगे, लकड़ी के बने हुए रहे होंगे या पत्थर के बने हुए होंगे। अब अगर डीडी कौशाम्बी का बात ये स्टेटमेंट मान लिया जाए कि वो लोग हल का प्रयोग नहीं करते थे, तो गहरी जुताई नहीं हो सकती। और यदि गहरी जुताई नहीं हो सकती, पहली चीज डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि वो प्लाव का यूज नहीं करते थे, प्लाव का यूज नहीं करते थे, उसकी जगह वो हो का यूज करते थे। अगर इनकी बात मान ले डीडी कौशाम्बी की, तो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी कि अगर प्लाव का यूज नहीं करते तो गहरी जुताई नहीं हो सकती, डीप टिलेज नहीं हो सकता। और पहली चीज, दूसरी चीज कि जब डीप टिलेज नहीं होगी तो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा, और सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन न होने के कारण क्या नहीं होगा, तो सिटी फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो सकती। तो डीडी कौशाम्बी का यह स्टेटमेंट सरासर गलत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल का प्रयोग नहीं करते थे। और हमारे पास एविडेंसेस है, हमने 2 एविडेंसेस की बात की। हमने कहा फर्स्ट बनावली, बहावलपुर, ये 2 प्लेस जहां से टेराकोटा के बने हुए हल प्राप्त हुए। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा, जहां से
प्लग फील्ड मिला, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। इससे ये प्रूफ होता है कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग का मेन एम रहा होगा। तो ये तो हो गया इनकी खेती। अब जो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, एंड वी हैव टू यूज द वर्ड द सिविलाइजेशन, नॉट द कल्चर, बिकॉज वी हैव नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर कल्चर। उनके कल्चर के संबंध में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था वो कृषि था, ये तो बात तय हो गई। अब वो किन किन फसलों को उगाते थे, किन किन फसलों का वो यूज करते रहे होंगे, तो किन किन फसलों का अब देखिए क्या कहता है, कौन कौन सी फसल बात करता है। दो चीजें, वीट और बर्ली, वीट प्लस बर्ली, गेहूं और जौ, दो महत्वपूर्ण उपज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। गेहूं की दो वैरायटी मिली, कौन कौन सी, ट्रिटिकम दोनों में ट्रिटिकम है। एक कहता है कि ट्रिटिकम कंपैटिकम, ट्रिटिकम कंपैटिकम, और दूसरा कहता है ट्रिटिकम स्फेरोजिकम। ट्रिटिकम स्फेरोजिकम दूसरे प्रकार की गेहूं। स्फेरोजिकम, तो गेहूं की दो वैरायटी हमें इंडस के उत्खनन में प्राप्त हुई, ट्रिटिकम कंपैटिकम एंड ट्रिटिकम स्फेरोजिकम। ये दो गेहूं की जो बीज मिले, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि उन्हें इस बात का भी पता था कि कौन सी उपज गेहूं की ज्यादा उत्पादक क्षमता वाली रही होगी। कहता है सीधे सीधे कि, और जो छोटे पत्ते वाले 6 पत्तियों वाले बीज द हेडम वल्ग्यूरा भी प्रचलित था। कालीबंगा में जो गेहूं दोनों ही मिले हैं, जौ, आई मीन टू से दैट कि कालीबंगा ऐसा प्लेस था जहां से जौ और गेहूं दोनों मिले। इसके अतिरिक्त गुजरात में लोथल से धान की भूसी, लोथल और रंगपुर से चावल की भूसी भी मिली, लोथल और रुद्दी से मूंग, उड़द, मिलेट भी प्राप्त हुआ। 6 प्रकार के मूंग इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुए, उनके साइड से मिले। इसके अतिरिक्त अलसी, सीसम एंड सरसों से भी ये लोग परिचित थे। इनका उपयोग वो तेल के लिए करते रहे होंगे। संभवतः कृषि का जो कृषि करते थे ये लोग, जो कृषि इनका मेन एम था ऑक्यूपेशंस का, वो उन इलाकों में रहा होगा जो नगरों से काफी दूर रहे होंगे। कृषि कार्य के लिए संभवतः हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगा के प्रथम काल से हल से जुता हुआ खेत मिला, जो बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसा आधुनिक में खेत जोते जाते हैं। मिट्टी के बने हल के प्रारूप के खिलौने बाड़ौली, हिसार, हरियाणा तथा चोलिस्तान जो भूतपूर्व बहावलपुर से मिलती हैं, इस प्रकार के मिले। कृषि उपज बहुत अधिक मात्रा में होती थी, सरप्लस प्रोडक्शन होता था। अगर सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होते तो आर्टिस्टियन या आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई होती इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये तो तय है किसी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रॉपर खेती करते थे, डेवलप फार्मिंग की खेती होती थी। अब उनके पास अगर देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में ग्रेनरी के एविडेंस मिले, गोदाम मिले। ये गोदाम, जब सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रेनरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा।
तो गोदाम भी ये कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सरप्लस प्रोडक्शन होती थी. वी हैव एविडेंसेस. द ग्रेनरीज विच वाज फाउंड इन द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, दो जगहों से क्लियर हमारे पास ग्रेनरी के एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं. इनके निर्माण, इनकी भंडारण के लिए इन ग्रेनरी का यूज किया गया होगा. इसके अतिरिक्त ये लोग नींबू, लीमन्स, केला, बनाना, वाटरमेलन, मस्क मेलन, डेट्स, ग्रेस से भी पूर्णतः परिचित थे. टी.एच. लैम्ब्रिक एक विद्वान थे, इतिहासकार. उन्होंने माना था कि गेहूं तथा जौ रबी की फसल थी जो मार्च तथा अप्रैल में पक जाती थी, और कपास तथा अलसी खरीफ की फसल थी. तो उपज में हमने किन किन बातों की बात कर ली? हमने कई सारे फसल की बात की. हमने कहा बरली, हमने कहा वीट. अब यहां पे मैं काउंट करता हूं. अब मैं इसे थोड़ा मिटाता हूं. अब देखिए, दो चीजें हमने बात की एक एक करके. वीट, बरली, राइस, मिलेट्स, डेट, ग्रेप्स, और क्या? अब कह रहा है इसके अलावा दाल भी मिली एविडेंस. वाटरमेलन, वेजिटेबल्स, तमाम सारे वेजिटेबल्स ये लोग उगाते थे. तो इनके तमाम सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं. लहसुन, गार्लिक बालू से मिला. बालू एक प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, रिसेंटली एक्सकवेट हुआ है. बालू हरियाणा में स्थित है. फिर जो तरकाई का किला है, तरकाई के किले से खेत की मटर तथा अनाज काटने का एक हसिया भी प्राप्त हुआ है. मतलब एक जो जिससे अनाज काटा जाता है, तरकाई के किले से एक हसिया भी मिला. तो ये चीज तो क्लियर है. अब यहां पे अगर देखिए तो बनौली से हल मिल गया, और तरकाई का किला से क्या मिला? हसिया. आप इसको कुछ भी कह सकते हैं जो अनाज काटने में ये लोग यूज करते रहे होंगे. इनके अलावा एक महत्वपूर्ण बात थी, जैसा कि मैंने कहा कि इनके पास इरिगेशन फैसिलिटी थी नदियों के माध्यम से. लेकिन एक एक्सेप्शनल केसेस है जहां से इनकी इरिगेशन फैसिलिटीज इनको प्राप्त होती थी, और वो थी दो. मैं सिर्फ एक की नहीं बल्कि मैं आज यहाँ दो जगह की बात करेंगे. कहाँ से मिले? ये तो ये सीड्स और अनाज की बात हो गई. अब इरिगेशन फैसिलिटी में ये कैसे यूज करते थे? इरिगेशन फैसिलिटी ये हमारे लिए क्या? इरिगेशन फैसिलिटीज में ये लोग रिवर, कैनाल्स, वाल, कुएं और वाटर टैंक, इनका यूज करते थे. अब ये कहां से मिले? रिवर तो सारे इंडस साइड से मिले. देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन. एज फार एज द मैटर ऑफ कैनाल्स, सोरतुगुई, अफगानिस्तान में एक प्लेस है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने नहरों को बना करके सिंचाई की थी. इसका एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हमें प्राप्त होता है. ऐसा एग्जाम्पल इंडस के और किसी भी साइड से नहीं मिला, लेकिन ये हमें मिला कहां से? सिर्फ और सिर्फ सोरतुगुई से, जहां से नहर निकाल कर सिंचाई की गई. अब वेल्स की बात करें, कुआं की बात करें, कुओं की, ये लोग कुओं से भी सिंचाई करते थे. कुएं तो इंडस के लगभग हर बड़े साइड से, मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, अन्य जगहों से इसके एविडेंस हमें मिले, यहां से कुओं के साक्ष्य मिले जिससे ये लोग सिंचाई का कार्य करते थे। अभी मैं काउंटिंग कर रहा हूं, वाटर टैंक कहां से मिले, तो कहते हैं धौलावीरा सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। धौलावीरा से राकट टैंक, राकट टैंक के हमें एविडेंस मिले। तो इरिगेशन के लिए केनाल सोरतुगुई से मिला, वाल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा के कुछ क्षेत्रों से भी कुएं के एविडेंस मिले। वाटर टैंक भी मिले, इनमें पानी को ये लोग संचित करके खेती में सिंचाई का प्रयोग करते रहे होंगे। नहरों का प्रयोग प्रायः ये नहीं करते थे, केनाल से ये लोग सिंचाई नहीं करते थे। लेकिन सोरतुगुई एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम्पल है जो ये प्रूव करता है कि ये लोग कभी नहर का इस्तेमाल भी करते रहे होंगे। वर्षा का जल प्राचीनतम जलाशयों तक कुओं से पानी जो होती थी उससे ये लोग सिंचाई का काम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीजेंट्स करते थे। धौलावीरा में रॉक कट जो वाटर टैंक मिला, ये उन्नत जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण दिखाता है। पत्थर से बने आकर्षक जो वाटर टैंक है वो धौलावीरा की अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है। धौलावीरा से 31 स्टेयर्स का एक तालाब मिला। आर.एल. स्टाइन ने बलूचिस्तान में पानी को इकट्ठा करने के लिए और यहाँ पर इसी पानी से सिंचाई करने के लिए इम्बैंकमेंट या तटबंधों की खोज की। ये लोग बांध बनाकर पानी को रोकते थे। इम्बैंकमेंट आर.एल. स्टाइन ने बलूचिस्तान से इसको ढूंढा। एक चीज और देखिए, तटबंध, इम्बैंकमेंट, बलूचिस्तान में ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे, तटबंध बनाते थे और तटबंध बनाकर के लोग सिंचाई करते थे। तो इस तरीके से हमारे पास एक लंबा एविडेंस है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः खेती में इन तमाम सारी चीजों का यूज करते थे। अगर कुओं की बात करें तो कुओं के साथ साथ जो नालियां जुड़ी हुई हैं, अल्लादीनों में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। कालीबंगा में भी अनेक घरों से कुओं की प्राप्ति हुई। हड़प्पा एवं धौलावीरा में कुओं की संख्या कम है, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक कुएं मिले घरों में। तो ये लोग कुओं से पानी निकालते रहे थे। कुओं से पानी निकालने की जो टेक्नोलॉजी थी इनके पास थी, मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक घरों से कुओं के साक्ष्य मिले। लेकिन जो अल्लादीनो थी वहां से कुएं और नालियां एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई गई, कनेक्टेड फॉर्म में दिखाई गई है। इट मे बी पॉसिबल दैट दे वर यूज दैट कैनाल्स फॉर द अदर पर्पज आल्सो, एंड इट मे बी कि वो सिंचाई के लिए यूज करते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सीवेज सिस्टम है, अगर सीवेज सिस्टम पे ध्यान दें तो इवन वी आर ऑल अवेयर दैट इंडस वैली civilizations they have proper sewage system, developed form of the sewage system they used, but the last point of that sewage system where it was in, we don't know. It may be possible that that sewage system, that sewage water used for agriculture purpose, ये जो सीवेज का पानी रहा होगा ये हो सकता है कि ये खेती में इसका यूज करते रहे होंगे, बट वी आर नॉट श्योर। दिस इज ओनली व्हाट इमेजिनेशन, ये हमारी कल्पना है, हम एक अनुमान, एक्सपेक्टेशंस है, हमारी आशा है, और हम एक ये अनुमान लगाते हैं। वी कैन एज्यूम दैट इट मे बी पॉसिबल दैट दे वुड यूजेस दैट वाटर फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज in the absence of the proper dumping of that sewage water.
कहाँ पे पानी डंप होती थी इसकी एविडेंस नहीं। तो इस आधार पे भी हम समझ सकते हैं कि ये पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करते रहे होंगे। तो ये तो रहा एग्रीकल्चर की बात। अब एग्रीकल्चर में कृषि उत्पाद में क्या क्या थे, खेतों में कौन कौन सी चीज़ें ये लोग उगाते थे। मैंने आपको तमाम सारी फसलों के नाम काउंट कराए। जो मैंने ग्रेनरी की बात की, मैंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ग्रेनरी के एविडेंस मिले। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि करों के रूप में ये अनाज का संग्रह यहां होता होगा। अब इसके साथ जैसे आप एग्रीकल्चर पढ़े तो आपको सेकेंड पोर्शन भी इसी के साथ जोड़ देना चाहिए, और वो क्या, पास्टोरलिज्म, पशुपालन उद्योग। दे वर पास्टर आल्सो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल, दे वर पास्टर आल्सो, ये लोग पशुपालक भी थे। क्यों, किस आधार पे कह सकते हैं, पशु कृषक एवं यातायात के साधन थे। एनिमल दैट वाज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। इट वाज नॉट ओनली यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पज, बिकॉज दैट वाज द चीप मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। दे वर यूज्ड इन द लैंड रोड सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो पशु थे ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते थे, इसलिए पशुओं को भी ये लोग पाला करते थे। पशुओं की तमाम सारी हड्डियां मिली। नेसदी नगर पशुपालक का केंद्र था। नेसदी एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेस पास्टोरलिस्ट इंडस्ट्री के लिए था। नेसदी गाय, बैल, बकरी, हिरन, गधा, ऊंट, ये सारे पशुओं के पालने के साक्षी। बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इवन आई एम टेलिंग दैट दे पेट द काउ आल्सो, बट वी हैव नो क्लियर एविडेंस कि हम ये कह सके कि वो लोग गाय भी पालते थे। हम ये बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैल थे। तो इनके आधार पे कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गायों को भी पाला करते रहे होंगे। दे यूज टू पेट काउ, बट वी हैव नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन नॉट से, but if we analysis the other evidences which found the different sites of Indus Valley civilization, like unicorn, like the हब्ड ऑक्सेन, ऊबड़ वाले बैल, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि गाय को भी ये पालते थे। कालीबंगा से गधे और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ये हाथियों को भी पालते थे। शेर के बारे में इनको कोई सूचना नहीं थी, शेर की जानकारी नहीं थी। तो पक्षियों के बारे में मैंने बात की थी, मैंने हाजा और फाख्ता की बात की थी जब मैं आपसे रिलीजियस मैटर पे बात कर रहा था। तो यहां से इन सारी चीजों को आप जोड़ें तो आपको पूरा का पूरा पास्टोरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दिख जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारा ट्रेड। एग्रीकल्चर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोनॉमी का ट्रेड। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इन दैट टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट आर्ट एंड क्राफ्ट आल्सो, एंड द बरियल्स वी विल टच द बरियल्स। और बरियल्स के आधार पर देखेंगे कि ये लोग किस तरह से लग्जीरियस लाइफ जीते थे। लग्जीरियस लाइफ, बरियल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड द ट्रेड्स। These topics we will read tomorrow in my next class. तो आज के लिए इतना ही। Goodbye and take care.